Hello students, this is your Shailesh sir, and today we are going to discuss two indirect methods of measuring very small distances. Okay, so in this lecture we will discuss two methods. One is to determine the molecular size of oleic acid, and second method is to determine the radius of an atom by Avogadro hypothesis. Okay, so let us start. As we know that the meter scale, vernier calipers, screw gauge or microscope, these are the measuring instruments by which we can measure a small distances by direct method. As we know that the meter scale can measure a distance up to 10 to the power minus 2 meter, and vernier calipers measures a distance up to 10 to the power minus 4 meter, and vernier calipers measures distance up to 10 to the power minus 5 meter, and microscope can measure a distance up to 10 to the power minus 6 meter. But as we know that the size of molecule is about 10 to the power minus 9 meter or 10 to the power minus 10 meter, so we cannot measure that small distance with direct method. Okay, so we will use here an indirect method by which we can measure the molecular size. Okay, so here we will use a basic concept, that is, we know about the volume. The formula of volume is given by length into breadth into height, or we can say length into breadth into thickness. As we want to measure the volume of this board, so we have to know about the length, breadth and its thickness, so we can measure its volume. Now volume can be written as L into B, means product of length into breadth is called area, so we can write area into H. H is height or we can say thickness, so area into thickness. So if we want to measure the thickness of this board or thickness of any sheet, then we write thickness equals to volume upon area. Okay, this is the basic formula and basic concept which is used in this method. Okay, so we will use the formula thickness equals to volume upon area. Okay, so for this method we will perform an experiment, and in that experiment we take a beaker. So for this method of measuring of molecular size of oleic acid, we will perform an experiment. We take a beaker. Okay, ये एक बीकर लिया और इसमें हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ओलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसमें ऐड कर दिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड ये हमने इसमें डाल दिया। क्लियर? तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड डालने के बाद हमने इसमें अल्कोहल ऐड किया। अल्कोहल कितना ऐड किया? 20 सेंटीमीटर क्यूब तक, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये बीकर में स्केल बनी है और इस स्केल के अकॉर्डिंग हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड ऐड किया और 20 सेंटीमीटर क्यूब तक, जब तक ये टोटल सोल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो जाता तब तक हमने इसमें अल्कोहल ऐड कर दिया। तो इस सोल्यूशन में, ये जो सोल्यूशन बन के तैयार हुआ, इस सोल्यूशन में ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड ये कितना होगा जरा देखें। ये 20 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम था और इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने ओलिक एसिड ऐड किया था, मीन्स 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ये कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इस सोल्यूशन का तैयार हो गया। क्लियर? अब हमने क्या किया, एक दूसरा बीकर लिया और इस सेकंड बीकर में भी हमने इस सोल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने इसमें ऐड कर दिया।
1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ओके, जब हमने इस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें ऐड किया तो क्या हुआ, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें हो गया और फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब तक हमने अल्कोहल ऐड कर दिया इसमें फिर से। क्लियर? तो अल्कोहल हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब तक ऐड कर दिया, मीन्स ये एक नया सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन में ओलिक एसिड कितना हुआ, इसमें था 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें कितना हो गया, ये इसमें इसका 1/20। क्लियर? सो concentration of oleic acid in this solution will be 1/20 into 1/20, so 1/400 is the concentration of oleic acid in this new solution. Clear? अब देखिए हमने ये नया सॉल्यूशन तैयार कर लिया 1/400 सेंटीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन का। क्लियर है? अब देखिए ये जो सॉल्यूशन है इसकी हमने सपोज कर ले एक ब्यूरेट ले लेते हैं। ठीक है, अब इस ब्यूरेट से हमने ड्रॉप्स बनाए इसकी। ठीक है, ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट में हमने इस सॉल्यूशन को, ये जो नया वाला सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और इससे हमने ड्रॉप्स गिराना स्टार्ट किया। ठीक है, और इन ड्रॉप्स को काउंट किया तो सपोज कर लेते हैं कि जब इससे 1 सेंटीमीटर क्यूब ये सॉल्यूशन इसका बाहर निकलता है तो इसमें 10 ड्रॉप्स बन जाती हैं। ठीक है, तो 10 ड्रॉप्स कितने सॉल्यूशन बनती हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम निकला यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ये कितना हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मीन्स 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, ये किसका आ गया वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। तो इस तरह से हम लोग सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने एक बकेट लिया, इसको हम इरेज कर देते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन 1/400 सेंटीमीटर क्यूब का तैयार हो गया। क्लियर है? अब हमने एक बकेट लिया ऐसी। ठीक है, इस बकेट में वाटर फिल कर दिया। ठीक है, तो ये वाटर की सरफेस है ऐसी, ये हमने कंसिडर कर लिया, ये वाटर की सरफेस है। क्लियर? अब इस वाटर की सरफेस में हमने लाइकोपोडियम पाउडर ऐसे इसमें स्प्रेड कर दिया। ठीक है, यहाँ लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग इस सॉल्यूशन का कुछ पार्ट इसमें ऐड करेंगे, ड्रॉप टू ड्रॉप। हमने इसमें ड्रॉप्स ऐड करना स्टार्ट की, सपोज कर लेते हैं हमने n ड्रॉप्स ऐड कर दी। ठीक है, तो अगर हम n ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं तो इसका जो प्रोसेस है ये क्या होगा देखिए ज़रा, क्योंकि इसमें ओलिक एसिड और अल्कोहल दोनों हैं इस सॉल्यूशन में, तो हमने क्या किया देखिए, ये 2 मॉलिक्यूल्स और ये तीसरा मॉलिक्यूल हमने ऐसे बनाया। ठीक है, क्या देखिए ये 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये 2 मॉलिक्यूल्स और एक तीसरा मॉलिक्यूल ऐसा। ठीक है, देन क्या होगा, ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है इसमें ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ ये फोर्स अप्लाई करेगा, देन ये दोनों मॉलिक्यूल्स बाहर शिफ्ट हो जाएंगे और इनके बीच में ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे सेट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से एक के ऊपर एक ये सभी मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, ये क्या होंगे, एक सिंगल मॉलिक्यूल्स की लेयर बन जाएगी। ठीक है, और ये सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में स्टिक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, मतलब 400 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड वहाँ पर है। ठीक है, तो ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसकी वजह से ओलिक एसिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में स्टिक नहीं होंगे और वो पूरे में स्प्रेड हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये एक सिंगल मॉलिक्यूल्स की लेयर ऐसी बन जाएगी। ठीक है, अब ये सिंगल मॉलिक्यूल्स की लेयर बन गई, तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि इस लेयर की थिकनेस स्मॉल t है। ठीक है, तो ये जो थिकनेस होगी इस लेयर की वही उस सिंगल मॉलिक्यूल का साइज हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो इस सिंगल मॉलिक्यूल के साइज को हम लोग T से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। तो सिंगल मॉलिक्यूल की ये लेयर बन गई ऐसे, इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज कर ले ऐसे, तो ये सभी मॉलिक्यूल सिंगल 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 ऐसे अरेंज है पूरे सरफेस में। तो इस तरह से ये सभी मॉलिक्यूल्स की ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे। तो हम लोग इस लेयर की थिकनेस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग बताया कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है थिकनेस कैलकुलेट करने का वो क्या था, थिकनेस इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो हमको वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ देखें अभी हम लोगों ने देखा कि सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इसमें कंसीडर कर लिया कि n ड्रॉप्स हमने इसमें ऐड की, ठीक है, n ड्रॉप्स हमने इस लाइकोपोडियम पाउडर वाली जो सरफेस थी उसमें हमने ऐड कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। इफ़ वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज v, देन वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स क्या हो जाएगी, n इंटू v, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। ये सोल्यूशन की n ड्रॉप्स का वॉल्यूम है, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड हमको चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए जैसे ही आपने इसमें n ड्रॉप्स उस सोल्यूशन की ऐड की तो ये क्या हो गया, ये जो अल्कोहल होगा वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, और अल्कोहल जब भी एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसमें n ड्रॉप्स स्प्रेड करवाई तो क्या हुआ, अल्कोहल हमारा इवेपोरेट हो गया और केवल क्या बचा वहाँ पर, ओलिक एसिड, ठीक है। तो हम लोग केवल ओलिक एसिड के वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर जो लेयर बनेगी वहाँ पर केवल ओलिक एसिड मॉलिक्यूल्स ही होंगे, वहाँ पर अल्कोहल का मॉलिक्यूल नहीं होगा क्योंकि वो इवेपोरेट हो चुका होगा, क्लियर। तो ये जो लेयर बन गई ये हमारे ओलिक एसिड मॉलिक्यूल्स की हुई। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन n ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन की n ड्रॉप्स में ओलिक एसिड का कितना वॉल्यूम होगा, तो हमने देखा कि ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना था, 1/400। तो हम लोग क्या लिखेंगे, NV टोटल वॉल्यूम था और 1/400 पार्ट उसमें ओलिक एसिड ऐड था, ठीक है। तो NV/400 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आ गया आपका, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन n ड्रॉप्स, क्लियर है। अब देखिए हमने बताया स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट थिकनेस इनटू एरिया इक्वल्स टू वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हमको एरिया इसमें कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, सपोज कर लेते हैं कि इसमें बहुत सारे लेयर बन गई, एक बहुत बड़ी सी लेयर। अब हम अगर सर्कुलर लेयर कंसीडर कर लें तो एरिया ऑफ द सर्किल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्किल πr² होगा, तो उससे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, इफ एरिया ऑफ द लेयर इज a and thickness of layer is small t, then volume equals to area into thickness, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया A इंटू थिकनेस T, दिस इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम लोग एरिया ऑफ द ये लेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एरिया के लिए मैंने अभी बताया कि जो अगर हम ये कंसीडर करें कि सर्कुलर एरिया बनेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि जैसे ही हमने वाटर में कोई कैरोसिन ऑयल की एक सिंगल ड्रॉप भी उसमें हमने उसमें ऐड करी तो क्या हुआ, वो पूरा सर्कुलर फॉर्म में ऐसे स्प्रेड हो जाता है। तो हम लोग उसके एरिया को सर्कुलर भी ले सकते हैं, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सर्कुलर एरिया ही हो, ठीक है। तो हम किसी भी शेप के एरिया को कंसीडर कर सकते हैं। सपोज कर लें कि हमारा जो सरफेस है वो इस तरह से बन गया, ठीक है।
तो इस नॉन यूनिफॉर्म सरफेस का एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर सभी ने देखा है। तो ग्राफ पेपर लेने के बाद क्या करेंगे, उस ग्राफ पेपर को इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर हमने ग्राफ पेपर को स्प्रेड किया तो जहाँ तक ये लेयर बनी होगी ओलिक एसिड की, वो लेयर उस ग्राफ पेपर में स्टिक हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा ग्राफ पेपर था और उस ग्राफ पेपर में ऐसे ये वाली लेयर हमारी उसमें ऐसे ऐड हो गई, ठीक है, ये ऐसी लेयर हमारी बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पेपर में, ये हमको मालूम है ग्राफ पेपर के जो स्मॉल स्क्वायर होता है उसका एरिया कितना होता है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें एक स्मॉल एरिया पता है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट कर लें यहाँ पे, तो हमें टोटल एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस जो लेयर बनेगी उस लेयर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ ब्लॉक्स होंगे या कुछ स्क्वायर्स होंगे जहाँ पर हाफ से कम ये स्प्रेड हो रहा होगा, हाफ से कम कवर कर रही है लेयर। तो अगर हाफ से कम होगी तो उसको काउंट नहीं करेंगे, और अगर हाफ से ज़्यादा कवर कर रहा है तो उसको हम काउंट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग उसके एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर है। सो अब हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो देखिए यहाँ पे, so from equation 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 यहाँ से दोनों को इक्वल कर दें, a इंटू टी इक्वल्स टू एन वी अपॉन 400, क्लियर। देन थिकनेस इक्वल्स टू n इंटू वी डिवाइडेड बाई 400 इंटू a। दिस इज द फार्मूला फॉर size of molecule of oleic acid, because T is the thickness of layer and thickness of layer is equal to the size of the molecule, okay, where A is area of the layer and V volume of single drop, volume of one drop और n number of drops, ठीक है। और T thickness of the size of the molecule, size of the molecule of oleic acid, molecule of oleic acid, okay। सो इस तरह से हम लोग ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस बाय एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ओके। सो व्हाट इज एवोगाड्रो हाइपोथेसिस? अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस is 2/3 of the volume of 1 gram of the substance, okay। Here we see that suppose this is a substance and atoms are considered as spheres, okay। So here there are many spheres which are put as this, इस तरीके से ये बहुत सारे एटम्स ऐसे रखे हुए हैं। देन ये क्या होगा कि हर एक एटम के बीच में कुछ खाली स्पेस होगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ये बहुत सारे एटम्स बना लें, देन आप ये देखें कि ये जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एटम है ये तो स्फेरिकल है, बट दो एटम्स के बीच में ये कुछ स्पेस बीच में छूट रहा है, ठीक है। तो ये स्पेस जो एम्प्टी स्पेस है, इसकी वजह से जो सब्सटेंस है उसका जो वो जो वॉल्यूम कवर करता है उसका वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम से थोड़ा सा ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम सपोज कर लें कि इसका टोटल वॉल्यूम इसने V वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस सब्सटेंस क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। सो एक्चुअल वॉल्यूम
occupied by the substance, ये क्या होगा 2/3 times of the total volume occupied by the substance. Okay, so the actual volume occupied by the substance is 2/3 of the volume occupied by the substance. Okay, so this is called Avogadro hypothesis, and with the help of this hypothesis we can calculate the radius of the atom. So we will start. Then we consider if m is the molecular mass of the substance, m gram of the substance contains n number of atoms. Okay, so 1 gram of the substance, 1 gram of the substance contains, 1 ग्राम में कितने एटम्स हो जाएंगे n/m. ओके, आप लोग देखिए इसमें 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस में इतने एटम्स हो गए, इतने एटम्स 1 ग्राम सब्सटेंस में होंगे. तो अगर हम ये कंसिडर करें, if r is the radius of the atom, if r is radius of the atom, then वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ये क्या हो गया, जो एटम है उसको हमने स्फेरिकल कंसीडर किया है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया 4/3 पाई r क्यूब. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वन एटम ये हो गया, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कितने थे n/m, ये n/m एटम्स, इतना एटम्स ये एग्जिस्ट करेगा इसमें. So actual volume occupied by the atoms of 1 gram of the substance, 1 gram of the substance, ये कितना होगा देखिए, सिंगल एटम का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब है. ठीक है, और 1 ग्राम में n/m एटम्स हैं, तो 1 ग्राम में 1 ग्राम का टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, ये हो गया आपका. ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया. अब देखिए अकॉर्डिंग टू आवोगाद्रो हाइपोथेसिस, आवोगाद्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस है वो कितना होगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम, ये तो होगा, क्योंकि आवोगाद्रो हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस विल बी इक्वल टू द 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस. ठीक है, देन दिस इज इक्वेशन सेकेंड. अब इन दोनों को आप इक्वेट कर लो, ये भी एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस और ये भी एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस इन 1 ग्राम. ठीक है, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे. देन ये हो जाएगा, यहाँ से इसको हम इरेज कर देते हैं, ये हो गया आपका n/m इंटू 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम. ओके, सो इससे आप 3 कैंसिल और यहाँ से ये 2 हो गया. देन r क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो गई, r क्यूब इक्वल्स टू m इंटू v डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा देखिए 2 पाई m. ठीक है, अब देखो
वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। सो वॉल्यूम भी मास हमने कितना लिया 1 ग्राम और डेंसिटी हमने रो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वॉल्यूम की जगह हमने 1/रो पुट कर दिया। देन आर क्यूब इक्वल्स टू एम इंटू वी इन प्लेस ऑफ वी 1/रो, सो 2 पाई एन इंटू रो। दिस इज द रेडियस और यहाँ से हम इसका क्यूब रूट ले लें, तो क्यूब रूट ले लेंगे तो इसका आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा आर इक्वल्स टू एम अपॉन 2 पाई एन इंटू रो टू द पावर 1/3। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग रेडियस ऑफ द एटम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।